Okay, let us solve 11th question now. In fact, 11th और 12th question आप दोनों को ध्यान से पढ़िए. Both are questions based upon similar concept. दोनों pyramids पे based question है. इन questions को sheet में भी specifically इसीलिए include किया है कि इसके थ्रू मैं आपको pyramids और बाकी दूसरे special figures को किस तरीके से analyze करते हैं वो concept समझा दूँ. Okay? So let us solve 11th and 12th together क्योंकि दोनों एक ही तरीके के question हैं. So 11th question is a regular pyramid on a square base has an edge of 150 meters and the length of the side of the base is 200 meters. Okay, find the inclination of its face to base. And second question is 12th one. A regular pyramid has a square base of side A. Its vertex is h meters above the ground. We have to find the angle between two lateral faces. Okay, so पहले 11th देखते हैं फिर 12th question देखते हैं. Okay, so 11th question में we have a pyramid जिसका square base है which has an edge of 150 meters long and the length of the side of its base is 200 meters. We have to find the inclination of face to base. Okay, so first let us draw a square pyramid. Okay, हम एक pyramid बनाते हैं जिसका base एक square हो and we have been given it is a regular pyramid. Okay, रेगुलर पिरामिड है सो कुछ इस तरीके का होगा. So this is the center of our square और वर्टेक्स डायरेक्टली इसके ऊपर लाई करेगा. ओके, these are the four edges of our pyramid. Okay. ठीक है, let us say this is A, this is B, this is C. A, this is B, this point is C, this point is D. Okay, so this is our pyramid O, A, B, C, D और ये जो vertex है ये है O. अब मैं कुछ definitions आपको pyramid के related बता देती हूँ. देखिए, this is the base of the pyramid A, B, C, D. In our case right now this is what? This is a square. This is a regular square. इसकी जगह ये कभी पेंटागन भी हो सकता है, कभी ट्रायंगल भी हो सकता है, कभी ऑक्टागन भी हो सकता है, कभी हेक्सागन भी हो सकता है. It can be any irregular or a regular figure. So this is the base of the pyramid. Okay. अब वर्टेक्स से जो हम बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम हाइट ऑफ द पिरामिड बोलते हैं. ओके, वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट O जहां पर सारी लेटरल एजेस मीट करती है एक दूसरे को. ओके, वो होता है वर्टेक्स. ठीक है, एजेस क्या है? इन दिस केस एजेस आर O, A, OB, OC एंड OD. बेसिकली वर्टेक्स को जो बेस के पॉइंट से कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं एज या फिर लेटरल एज. वर्टेक्स को स्क्वायर के पॉइंट से कनेक्ट किया OA, OB, OC और OD, तो ये हो गई एजेस. और फिर एक और टर्म आता है लेटरल फेसेस. अब फेसेस क्या हुए ये देखिए, OAB एक फेस है, OBC एक ट्रायंगुलर फेस है, OCD एक ट्रायंगुलर फेस है और OAD एक ट्रायंगुलर फेस है. बेसिकली वर्टेक्स और यहाँ पर बेस की एक एज ने मिलकर जो फिगर बनाया होगा वो ही लेटरल फेस हो जाता है. सो अभी हमने क्या टर्म्स पढ़ी? वर्टेक्स, हाइट, lateral edge, lateral face and the base of the pyramid. So in this case ABCD is a square base of the pyramid, O is the vertex, OA, OB, OC and OD are edges and OAB, OBC, OCD and OAD are the lateral faces of the pyramid. Definitions clear है? Okay, अब question solve करते हैं. So एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक जेनेरिक डेटा अज्यूम कर लेते हैं, फिर हम इसमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी है वो निकाल देंगे. सो लेट अस से
हमारा ये जो स्क्वायर बेस है उसकी विड्थ है a, ओके, उसकी विड्थ है a। जो लेटरल एज है लेट अस डिनोट इट बाय L, okay, let us say this is L, okay, and let us say the height of my pyramid is h, ठीक है। let us say मेरे पिरामिड की हाइट जो है वो है h है। सो ये डेटा हम अज्यूम कर लेते हैं। अब इनमें से कुछ डेटा हमें क्वेश्चन में दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा, डिपेंडिंग अपॉन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन में वी नो the base of the square, so we know a is equals to 150 meters, that is what they say. Our regular pyramid with a square base is an edge of 150 and the length of the sides of its base is 200, sorry, a is 200, okay, a is 200 meters and L is 150 meters, because यही दिया है square base is an edge, that is lateral edge is of 150 meters and the length of the side of its base is 200 meters. We have to find the inclination of its face to base. हमें इस फेस का हमारे बेस के साथ जो इंक्लिनेशन है वो पता करना है, किसी भी फेस का, सिंस इट इज अ रेगुलर पिरामिड, सो ए बी फेस ले, ओ बी सी ले, ओ सी डी ले है, ओ ए डी है, इट इज इररिस्पेक्टिव बिकॉज ऑल आर रेगुलर, तो सबका सेम इंक्लिनेशन होने वाला है। लेट अस डू वन थिंग, हम ये वाला फेस ओ ए बी इसका इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं, किसके साथ, हमारे पिरामिड के साथ। उसके लिए लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन, ओके। ये है हमारा बेस ए बी सी डी, ये है वर्टेक्स, ओके, ये है मेरा फेस ओ ए बी। और मैं चाहती हूं कि मैं इस फेस का इंक्लिनेशन निकालूं बेस के साथ, परफेक्ट। सो बेसिकली अगर मैं कहूं कि मैं इस फेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इट इज अ परपेंडिकुलर, ओके, और एक परपेंडिकुलर इस ए बी पर यहां से ड्रॉ करूं, ओके। सो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वही एंगल होगा, वही इस फेस का इसके इंक्लिनेशन होगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूं, वर्टेक्स ओ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमारे एच ए बी पर, इसका जो भी इंक्लिनेशन होगा हमारे बेस के साथ वही होगा हमारे इस लेटरल फेस का बेस के साथ इंक्लिनेशन, परफेक्ट। देखिए वापस कहती हूं, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की ए बी पर और एक परपेंडिकुलर ये जो है ये है ए बी पर बेस से, ठीक है। एक वर्टेक्स से ड्रॉ की परपेंडिकुलर और एक बेस से ड्रॉ की परपेंडिकुलर, इन दो परपेंडिकुलर्स के बीच का जो भी एंगल होगा वही एंगल वही इंक्लिनेशन होगा हमारे फेस का हमारे बेस के साथ। क्लियर है, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है ये बात आप सभी को। अब देखिए ये कैसे निकालें। लेट अस से दिस इज पॉइंट ओ, इस पॉइंट को फॉर नाउ लेट अस से P and let us say this point is O dash, ठीक है। अब देखिए O dash P क्या होगा, मुझे बताइए। What is going to be O dash P? It is going to be A by 2 because मैंने क्या माना है, O dash perpendicular है, okay, O dash height है, so this is perpendicular. Okay, let me introduce this term over here. This is the foot of perpendicular O dash. O से जो हमने perpendicular draw किया बेस पर उसका foot है O dash. And it is very clear since it is regular pyramid, O dash क्या होगा, इस square base का center. Clear है? So यहाँ पे OP dash is going to be A by 2.
परफेक्ट। दूसरा OP, OP की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें निकालनी है। ओके, परफेक्ट। एंड OO डैश भी हम नहीं जानते हैं। व्हाट इज OO डैश? OO डैश इज इक्वल्स टू H, बट राइट नाउ इट इज इवन अननोन। ओके, अगर इनमें से एक और चीज पता चल जाए, OO डैश या फिर OP, तो हम क्या इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, हम इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट राइट नाउ वी डोंट नो एनीथिंग। बट आई थिंक हम OP की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब OP की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए। कंसिडर दिस ट्रायंगल ओवर हियर OPB। मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करती हूं, OPB। OPB, दिस ट्रायंगल ओवर हियर। हाँ, ये वाला ट्रायंगल जो मैं अभी इस ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगी। ओके, इस ट्रायंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस ट्रायंगल OPB। ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है, इसीलिए मैं इसे बहुत क्लियरली समझाना चाह रही हूँ। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछते जाइएगा। डाउट तो नहीं है ना? ओके, इन दिस ट्रायंगल OPB, अब देखिए OB क्या होगी? इट इज L, हमारी H की लेंथ। PB क्या होगा? PB इज गोइंग टू बी A/2 बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हाफ AB। हम ये बात समझ रहे हैं क्योंकि OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, OA और OB इक्वल होंगे, सो जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी हो जाएगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, देखिए पहले ये ट्रायंगल OAB भी यहां देख ही लीजिए। ये ट्रायंगल OAB है, ये इसकी परपेंडिकुलर है, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए ये मीडियन भी होने वाली है ना? अब OP हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी L² माइनस A² / 4 अंडर रूट। ठीक है, सो वी आई हैव फाउंड OP नाउ। सो व्हाट इज OP? इट इज L² माइनस A² / 4 अंडर रूट। और इस तरीके से क्या हम OO डैश भी पता कर सकते हैं, दैट इज द हाइट। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, कंसिडर दिस ट्रायंगल नाउ OPO डैश। मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करती हूं, OPO डैश। ठीक है, दिस इज माय ट्रायंगल OPO डैश। ये थीटा हमें पता करना है। दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ माय लेटरल फेस विद द बेस। परफेक्ट। अब इस ट्रायंगल OPO डैश में मैं जानती हूं O डैश P है A/2। OP की वैल्यू अभी हमें भी पता चली है L² माइनस A² / 4 अंडर रूट। सो इस बेसिस पे हम अब O डैश की वैल्यू में निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी L² माइनस A² / 4 माइनस A² / 4 अंडर रूट। सो अंडर रूट L² माइनस A² / 2। सो अगर हमें अब एक और चीज देखिए, व्हाट इज दिस? OO डैश, इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ माय पिरामिड विच इज अंडर रूट L² माइनस A² / क्लियर? सो अगर हमें पिरामिड की H और H पता हो और साइड की लेंथ पता हो तो उसके थ्रू भी हम हाइट ऑफ द पिरामिड निकाल सकते हैं। बट इस वक्त हम वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल थीटा। दो तरीके हैं निकालने के, ईदर वी फाइंड साइन थीटा और लेट अस फाइंड कॉस थीटा ओवर हियर। सो कॉस थीटा वुड बी A/2 अपॉन अंडर रूट L² माइनस A² / 4। A की वैल्यू वी नो इट इज 200 एंड L की वैल्यू वी नो इट इज 150। वैल्यूज को पुट कीजिए और जो भी वैल्यू आएगी दैट इसका कॉस इनवर्स निकाल दीजिएगा। दैट इज गोइंग टू बी द इंक्लिनेशन ऑफ द बेस विद द ऑफ द लेटरल फेस विद द बेस।
I mean calculation is not important, important is the concept over here. कॉन्सेप्ट ये कि जब मैंने कहा कि मुझे फेस का बेस के साथ इंक्लिनेशन निकालना था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की कॉमन एज देखी, बेस और हमारे लेटरल फेस में कॉमन एज थी AB, तो मैंने AB पर एक परपेंडिकुलर वर्टेक्स से लिया और एक बेस का परपेंडिकुलर लिया, और इन दोनों के बीच का एंगल आई नो इट इज गोइंग टू बी द इंक्लिनेशन बिटवीन द फेस एंड द बेस। क्लियर है ये बिल्कुल सभी को? और अब हमने एक और चीज के साथ क्या देख ली कि अगर हाइट निकालनी हो और अगर हमें एच और बेस की लेंथ पता हो तो भी हम उसके थ्रू हाइट ऑफ द पिरामिड निकाल सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसी कॉन्सेप्ट पे 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप 11th क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर नोट डाउन कर लिया होगा। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट। ये डायग्राम मैं ऐसा के ऐसा ही रहने दे रही हूं। Okay, so let us see 12th question now with this diagram only. ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है? A regular pyramid has a square base with its side A. Its vertex is H above the ground. तो इस केस में हमें A दिया है और H की वैल्यू दी है। We have to find the angle between two lateral faces. इस केस में हमें दो लेटरल फेसेस के बीच का एंगल निकालना है। समझिए, दो फेसेस कंसिडर कीजिए, OAB और OBC। तो हमें इन दोनों लेटरल फेसेस के बीच का एंगल पता करना है। समझिए कैसी सिचुएशन है, देखिए फिर से। लेट अस ड्रॉ दिस पिरामिड वंस अगेन। ओके, आई नो दिस A, okay, this is O dash, center of the base, and this is O, our vertex. हमें ये O dash पता है। We know the height of our pyramid H. हमें क्या पता करना है? हमें अब दो लेटरल फेसेस के बीच का एंगल पता करना है। और दो लेटरल फेसेस क्या होंगे? एक लेटरल फेस तो होगा OAB, true. Let us name the faces even, A, B, C, D. So एक लेटरल फेस तो होगा OAB और दूसरा लेटरल फेस होगा OBC। परफेक्ट। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। बेसिकली अगर आप 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का ये एंगल पता करना है। क्लियर है? वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस एंगल जो इन दोनों के बीच का बनेगा। थोड़ा इस सिचुएशन को विजुअलाइज करवाने की कोशिश करती हूं। देखिए, इस डस्टर को देखिए। ओके, अगर मैं इस डस्टर को यहां से काट दूं डायगोनली, ओके, अगर मैं इस डस्टर को डायगोनली काट दूंगी तो क्या मिल जाएगा? हमें एक पिरामिड मिल जाएगा जिसका रेक्टेंगुलर बेस होगा। ओके, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर बेस होगा। तो अभी के लिए जस्ट ऑब्जर्व ऑन द हाफ पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस क्यूब ओनली। ओके, लुक हियर। अभी के लिए वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द हाफ पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो बस जो पार्ट विजिबल है उसी को देखें। अब इसमें एक लेटरल फेस तो ये होगा जो यहां पर है जिसमें मैंने हाथ रखा है, और एक लेटरल फेस ये होगा। सो लेट अस से दिस इज वन फेस OAB और यहाँ पे एक और फेस होगा OBC। तो हमें इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल निकालना है। समझ पा रहे हैं? कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। दिस इज, वहां पे वो क्या थे, देयर वी हैड ट्रायंगुलर बेसिस, यहाँ पे भी ये OAB एक ट्रायंगुलर फेस है और OBC एक ट्रायंगुलर फेस है, और हमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है? या और किस तरीके से समझाने की कोशिश करूं? आई मीन, आर यू जस्ट कंफर्टेबल विद दिस पॉइंट राइट नाउ कि हमें निकालना क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फेस ऐसा है और एक ट्रायंगुलर फेस ऐसा है, तो इन दोनों के बीच का जो ये 3D एंगल है हमें उसका मेजरमेंट निकालना है। आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं एक चीज समझ रही हूं कि इस फेस OAB
और OBC में कॉमन है हमारी OB। OB इन दोनों के बीच की कॉमन एज है। तो मैं क्या करती हूं, मैं इस फेस OAB से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं इस एज OB पर, और इस फेस OBC की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं अगेन इस एज OB पर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने OBH पर पहले तो इस फेस OAB की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की A से वर्टेक्स, और इस एज OB पे इस फेस OBC की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की OC से। अब मैं कहती हूं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यही एंगल होगा जो यहां पर इन दोनों के बीच का होगा। इज दैट क्लियर? देखिए ना, सिंपल सी बात है, फेसेस के बीच का एंगल निकालो या फिर उनकी परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल निकालो, वो इक्वल होगा। तभी मैं कह रही हूं कि ये एंगल, अगर इन दो फेसेस के बीच का एंगल अगर थीटा है, सो ये एंगल भी इन दोनों की परपेंडिकुलर्स के बीच का यहां पर थीटा ही होगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। फॉर नाउ लेट अस से दिस पॉइंट इज सम पॉइंट P। ओके, एंड लेट अस जॉइन AC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए APC। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके समझाती हूं। ACP। ओके, यही जो ट्रायंगल है APC, उसी को हमने यहां पर एक्सटेंड करके समझा है। अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो हम जानते हैं ये दोनों लेंथ्स इक्वल होने वाली है। ओके, और इसी कारण से यहां से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही मीडियन होगा और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। ओके, सो दिस एंगल theta and this angle is theta, or I'll say this is going to be theta by 2 and this is going to be theta by 2। क्लियर है? इस पॉइंट तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं? ओके, अब what we are interested in is हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास AC की वैल्यू तो है। AC is the diagonal of my base, so it is √2a। स्क्वायर बेस है तो उसकी डायगोनल हो जाएगी √2a। ओके, नेक्स्ट हमें पता करनी है AP की वैल्यू। अब बताइए AP की वैल्यू कैसे पता करेंगे? AP की वैल्यू पता करने के लिए लेट अस ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल ओवर हियर OAB। ओके, हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। OAB। ठीक है, हमें पता करना है A से P OB पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वो AP की वैल्यू। ओके, अब कैसे पता करेंगे? देखिए, एक चीज कर सकते हैं, मैं AB की वैल्यू जानती हूं, इट इज A। ओके, और अगर मैं O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, लेट अस से दिस परपेंडिकुलर इज OQ, तो मैं OQ की लेंथ भी पता कर सकती हूं, हमने अभी अभी की थी। देखिए, मैं क्या कर रही हूं, O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहती हूं। ओके, लेट अस से दिस इज OQ। हमने अभी अभी देखा था हम OQ की लेंथ किस तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। लेट अस ज्वाइन Q एंड O डैश। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? O dash Q is a right angle triangle and here we know H
वी नो ओ क्यू, इस ट्रायंगल को भी मैं ड्रॉ कर देती हूं, ओ ओ डैश क्यू, ये है h और ये है a बाय 2, o डैश इज h एंड दिस इज a बाय 2। सो ओ क्यू की वैल्यू मैं जानती हूं, ओ क्यू की वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वेयर बाय 4 प्लस h स्क्वेयर। ओके, अब मैंने ओ क्यू की वैल्यू इसलिए पता की क्योंकि इफ आई नो द वैल्यू ऑफ ओ क्यू, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is going to be half base into height, which is half base is AB, which is small a, into height is OQ, which is under root a square plus 4h square divided by 2, and this is even going to be again half base into height। अब मैं बेस कंसिडर करती हूं OB को। ओके, OB इज माई एज, सो OB की वैल्यू होगी L, ठीक है, और हाइट कंसिडर करूंगी AP को, हाइट इज AP। ओके, सो AP की वैल्यू मिल जाएगी, AP की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, वील गेट हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो वील गेट A अंडर रूट a square plus 4h square divided by 2 is going to be L into AP, correct? A into under root a square plus 4h square by 2 is equals to L into AP, and AP is this divided by L. L is the lateral edge of the pyramid। ये अब हमारे पास तो lateral edge की भी वैल्यू नहीं है, पर वो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसी ट्रायंगल को देखिए जो हमने अभी अभी यहाँ पर कंसिडर किया था, ट्रायंगल OAB, उसमें लेटरल एजेस क्या है, OA लेटरल एज है और OB लेटरल एज है। इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है, आई नो OQ, मैं जानती हूँ OQ की वैल्यू, मैं जानती हूँ QB की वैल्यू, इट इज a by 2। सो व्हाट इज गोइंग टू बी OB इन दिस ट्रायंगल, OB which is L is going to be under root OQ square plus QB square। Am I correct? मैं सही बोल रही हूं या नहीं? या फिर इस लेटरल एज को पता करने का एक और तरीका है, यहां पे देखें, लेट अस फाइंड एन इजी वे, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करते हैं। या तो OB को पता करने का एक तरीका ये है, या फिर हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए O डैश B, लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल। देखिए एक तो लेटरल एज को पता करने का ये तरीका था, अब मैं आपको एक और तरीका बता करती हूँ, डायरेक्ट तरीका, वो देखिए इस ट्रायंगल O डैश B को देखें, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। O डैश B, O डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं H, O डैश B की वैल्यू हम जानते हैं A बाय, सॉरी, अब मुझे बताइए O डैश B की वैल्यू क्या होगी। O डैश B की वैल्यू होगी BD डिवाइडेड बाय 2 विच इज अंडर रूट 2A डिवाइडेड बाय 2 विच इज A अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो OB की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, इट इज गोइंग टू बी A स्क्वेयर बाय 2 प्लस H स्क्वेयर अंडर रूट, ट्रू। सो इतना अगर हमें सिर्फ डायरेक्टली ही क्वेश्चन में वर्टेक्स और एच दी हो, हाइट वर्टेक्स और बेस की लेंथ दी हो और एच पता करनी है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट वे, दिस इज अ मोर डायरेक्ट वे। सो हमें एल की वैल्यू भी पता चल गई, सो वी नो द वैल्यू ऑफ एपी नाउ, वेयर वर वी, या हियर। सो अब हमें यहां पर एपी की वैल्यू भी पता चल गई है। एंड व्हाट वाज एपी? एपी इज ट्रायंगल ए, okay, we know the value of AP now, so it is A by 2, okay, let us put the value of L और AP की वैल्यू एक बार में पता ही कर लेते हैं। so AP is A by 2 under root A square plus 4H square upon
एल की जगह पे व्हाट विल आई राइट, एल की जगह पे वी नो एल इज अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 2h स्क्वेयर इंटू √2. ओके, करेक्ट, क्लियर है. एपी इज ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4h स्क्वेयर अपॉन 2 और एल की जगह पे हैव रिटन ए स्क्वेयर प्लस 2h स्क्वेयर और अंडर रूट 2 को मैं ऊपर ले गई. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एपी. सो लेट अस राइट इट. इट इज ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4h स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 2h स्क्वेयर इंटू अंडर रूट. ठीक है, यहां से व्हाट वी कैन फाइंड इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय 2. साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी, let us say this point is some point r for now, so it is going to be PR upon AR. So it is going to be under root, what is PR? Sin theta by 2 की जगह sin theta by 2 is going to be AR upon AP. Okay, what is AR? It is A upon under root 2 upon AP is A under root A square plus 4h square into √2 A square plus 2h square. It's cancelled. So what we'll get is theta is 2 sin inverse और यही हमें पता करना था, एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस. क्लियर है क्वेश्चन सभी को? एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं. अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आई विल से दिस क्वेश्चन कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन पिरामिड. मैंने इसीलिए वी हैड स्पेशली केप्ट दिस क्वेश्चन इन द शीट बिकॉज इसके थ्रू पिरामिड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है. एक बार फिर से समझाओ. देखिए, हमें OAB और OBC के बीच का एंगल पता करना था, दिस एंगल बिटवीन द टू लेटरल फेसेस. व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, इसको पता करने का तरीका है कि मैं इन दोनों का कॉमन एज निकाल दूं. सो वी गॉट द कॉमन एजेस AB. नाउ व्हाट आई डिड वाज, मैंने A से इस फेस OAB का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OB पर, और इस फेस OBC का C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OB पर. अब मैंने रियलाइज किया कि इन दोनों के बीच का एंगल AP और PC के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों एजेस के बीच का भी होगा, बिकॉज जो एंगल परपेंडिकुलर्स के बीच का होता है वही एंगल फेसेस के बीच का होता है. सो वी रियलाइज दिस. अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए AP की वैल्यू चाहिए थी. AC की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, इट इज द डायगोनल, सो इट इज √2a. AP की वैल्यू पता करने के लिए हमने इस ट्रायंगल को देखा, इस फेस को देखा OAB. हमें बेसिकली चाहिए थी AP की वैल्यू. AP की वैल्यू पता करने के लिए हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया पता किया. एरिया पता करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला हाफ बेस AB इंटू हाइट OQ. OQ की वैल्यू हमें नहीं पता थी. OQ की वैल्यू पता करने के लिए वी यूज दिस ट्रायंगल OQB, दिस ट्रायंगल ओवर हियर वेयर इट इज. Okay, we use this triangle OQO dash, OQO dash. H एक साइड थी a/2, so यहाँ से हमें पता चल गई OQ की वैल्यू. So we know the area of the triangle could be half base AB into OQ or half OB into AP. OB is L. L की वैल्यू पता करने के लिए हमने इस ट्रायंगल को यूज किया OO dash B. We use this triangle OO dash B. Over here, this is √2a/2, this is h, तो यहाँ से OB की वैल्यू पता चल गई. So in all we succeeded in finding the value of AP. AP की वैल्यू पता चल गई तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू आसानी से
नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई मीन आई विल से गुड, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट हाँ इस कोई के थ्रू हमारे पिरामिड्स के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके